السلام علیکم. اقرا حفاظ بوائز کالج English lectures for first year English, lecture number 5. Today my topic of discussion is homophones and homonyms. Let we have to discuss first what are homophones. Pair of words having same sound or pronunciation. الفاظ کی ایسی جوڑی جو بولنے میں ایک جیسے ہوں یا جن کا تلفظ پروننسیشن ایک جیسا ہو بٹ ڈفرینٹ ان اسپیلنگ اینڈ میننگ، لیکن ان کی ہجے یعنی اسپیلنگ الگ ہے اور ان کی میننگ یعنی مطلب جو ہے وہ جدا ہے. ہوموفونز کی طرح ہومونیمز ہوتے ہیں، سیم ساؤنڈ ہوتے ہیں، سیم اسپیلنگ ہوتے ہیں بٹ ڈفرینٹ ان میننگ اینڈ پارٹس آف اسپیچ. کوئی ورب ہوتا ہے، کوئی ناؤن ہوتا ہے، کوئی ایڈجیکٹو ہوتا ہے. ہم جو پہلے فیز میں ڈسکس کریں گے وہ ہوموفونز کریں گے. آج جو ہوموفونز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پہلا ہوموفونز کا پیئر ہے ACCEPT ایکسیپٹ. ایکسیپٹ کے معنی قبول کرنا، ایگری کرنا، اور EXCPT ایکسیپٹ کے معنی ما سوا، ادر دین. ACCEPT ایکسیپٹ کے معنی ایگری کرنا. ہی نیور ایکسیپٹس اے برائب، وہ کبھی رشوت قبول نہیں کرتا. قبول کرنے کے معنوں میں ACCEPTS ایکسیپٹ آئے گا. اس کے ساتھ کا پیئر ہے EXCEPT ایکسیپٹ. ایکسیپٹ کے معنی ادر دین، علاوہ، سوا. ہی اسپوک نتھنگ ایکسیپٹ ٹروتھ، اس نے کچھ نہ کہا سوائے سچ کے. اب سوائے سچ کے لیے EXCEPT ایکسیپٹ کا لفظ یہاں شامل کیا جائے گا. دوسرا پیئر آف ہوموفونز ہم ڈسکس کریں گے ACCESS ایکسیس. ایکسیس کے معنی ریچ، پہنچ یا ریکمنڈیشن کے. I have no access to the چیف منسٹر، میرے پاس چیف منسٹر تک کوئی پہنچ موجود نہیں ہے کہ میں اچھی جاب حاصل کر سکوں. سورس کے معنوں میں آئے گا، ریکمنڈیشن کے معنوں میں آئے گا. اس کے ساتھ جو ایک تو ACCESS ایکسیس ہے، اس کے ساتھ کیا پیئر ہے EXCESS ایکسیس. ایکسٹرا یعنی اضافی، مور دین. I have no excess money for luxury یا entertainment، میرے پاس اضافی رقم نہیں ہے تفریح کے لیے یا عیاشی کے لیے. اس ایکسیس سے مراد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونا، لمیٹڈ. EXCESS ایکسیس. تیسرا پیئر آف فون جو آج ہم ڈسکس کریں گے ADVICE ایڈوائز، ناؤن ہے، اور ADVICE، اب SE ہٹا کے CE لگ جائے گا، ورب ہے. ایڈوائس کے معنی نصیحت، اور جب SE ہٹا کے CE لگا دیا تو نصیحت کی گئی. سجیسٹ اور سجیسٹڈ کی بات آ جائے گی. ایڈوائز SE والا. اب یہاں جو ہے ہم اس کو کور کریں. ADVICE ایڈوائس ناؤن ہے. VICE all my advice feels flat on him، میری ساری نصیحت لگتا ہے کہ اس پر بیکار گئی. اب یہاں کون سا آیا؟ CE والا. اور یہاں کون سا آیا؟ SE والا، عمل کے معنوں میں. ADVICE ایڈوائس ناؤن ہے. All my advice feels flat on him، لگتا ہے کہ میری ساری نصیحتیں اس کے لیے بیکار گئی، اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. ADVICE ایڈوائس، نصیحت کی. I advised him to avoid bad company، میں نے نصیحت کی اس سے، عمل کیا ہے، ورب ہے کہ وہ بیڈ کمپنی کو، بری صحبت کو
एवॉइड करे, इज्तनाब बरते। ADVIC एडवाइस नाउन है, सजेस्ट करना। ADVISC एडवाइस वर्ब है, जो नसीहत की गई। एल्यूजन, ALLUSION एल्यूजन, थिंकिंग, सोच, तसव्वुर। इसके साथ का पेयर है ILLUSION एल्यूजन, इमेजिनेशन या तसव्वुर या ख्याल। द राइटर एक्सप्लेन्ड हिज एल्यूजन टू इवेंट। इस मौके पर मुसन्निफ ने अपनी राय का इजहार किया, अपने तसव्वुर का इजहार किया, अपनी सोच की अक्कासी की। सोच की अक्कासी या थिंकिंग के लिए, तसव्वुर के लिए ALLUSION, और आई से एल्यूजन जो है तसव्वुर। बचपन में छोटा बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों को अपने रंग में देखता है। ये चीज़ अंग्रेज़ी ज़बान में एक्विजिशन कहलाती है। उसकी एक अपनी सोच का महवर होता है, और बड़े होकर उसे ख्याल आता है कि साहब मेरी ये सोच दुरुस्त नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा था। उसे अपने बचकाना ख्यालात पर हंसी आती है। ILLUSION एल्यूजन के मानी इमेजिनेशन, तसव्वुर। एल्यूजन्स ऑफ चाइल्डहुड डू नॉट लास्ट लॉन्ग। बचपन के जो तसव्वुरात हैं, बचपन की जो सोच है, वो ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहती। मैच्योर होने के बाद इंसान को अपनी सोच पर कि मैं बचपन में इस चीज़ को ऐसा समझता था, जबकि ये ऐसा नहीं है। ALLUSION एल्यूजन, थिंकिंग या तसव्वुर। ILLUSION एल्यूजन, सोच, तख़य्युलात। द राइटर एक्सप्लेन हिज एल्यूजन्स टू इवेंट। इस मौके पर उसने अपनी सोच का इजहार किया। बचपन के तसव्वुर देर पा नहीं होते। बचपन की सोच बचकाना सोच होती है, वो मैच्योर होने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमारी ये सोच बचकाना थी, इसमें मैच्योरिटी मौजूद नहीं थी, पुख्तगी नहीं थी। एडिशन A से ADDITION और एडिशन E से। इस एडिशन के मानी इंक्रीमेंट या इजाफे के हैं, इंक्रीज के हैं। और E से जो एडिशन है, ADD से और E से, E से जो एडिशन है, इसके मानी वर्जन, जिल्द, वॉल्यूम, जो शाया हुई है। न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ फैंटास्टिक। इस किताब का जो नया एडिशन शाया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। जबकि इस एडिशन ADD एडिशन से मुराद इजाफा का है। 5000 इज़ अ गुड एडिशन इन हिज इनकम। उसकी आमदनी में 5000 का इजाफा एक अच्छा इजाफा है। तो इजाफा, सम अप, इंक्रीमेंट ADDITION और EDITION एडिशन, वॉल्यूम या जो किताब शाया हुई। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड। इस किताब का नया एडिशन शाया हो गया है। नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन हम डिस्कस करेंगे। BALE, बेल। बेल के माने बंडल, रुई की गांठें। BAIL, बेल, गारंटी या जमाना। BALE, बेल, बंडल के लिए। He has bought 2 bales of cotton. उसने रुई की 2 गांठें खरीदी हैं, 2 बंडल खरीदे हैं। इस बेल से मुराद गारंटी। He has released on bail, वो जमानत पर रहा हुआ है। BALE, बेल, BAIL, बेल। बोलने में दोनों एक जैसे हैं, आवाज़ एक जैसी है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। ये BALE, बेल है, ये BAIL, बेल है। BALE, बेल के माने बंडल, गठरी, गांठें। और BAIL, बेल के माने गारंटी, जमानत, वो जमानत पर रहा हुआ। बेलमेंट और प्लेज, जमानत और हवालगी। नेक्स्ट पेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, BERTH, बर्थ।
BERTH बर्थ और BIRTH बर्थ। BERTH बर्थ के मानी स्लीपिंग सीट। रेलगाड़ी पे सफ़र करते हैं और सोने के लिए जो बर्थ बुक कराई जाती है, या तो आप सिर्फ सीट बुक कराते हैं टिकट खरीद कर, तो आप सिर्फ बैठ कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बर्थ बुक कराते हैं तो रात को वो जो फोल्डिंग बर्थ है वो ओपन हो जाती है और एक जो है वो रॉ में 3 आदमी आराम से, एक तो सीट पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे 2 पर। रेलगाड़ी पे आपने सफ़र किया होगा तो बर्थ के मानी स्लीपिंग सीट के है। आई हैव रिजर्व्ड अ बर्थ ऑन द ट्रेन, मैंने ट्रेन पर एक बर्थ रिजर्व कराई है, यानी सीट के साथ साथ सोने के लिए बिस्तर भी जो है वो हमने रिजर्व कराया है। इस बर्थ से मुराद बॉर्न, पैदाइश, टुडे इज़ हिज बर्थडे, आज उसकी सालगिरह का दिन है, भाई मुबारक हो उसे। बेयर, BARE बेयर के मानी एम्प्टी, खाली। BARE बेयर के मानी एम्प्टी या खाली। BARE बेयर एम्प्टी या खाली। ही केम बैक बेयर फुट, वो नंगे पैर वापस आया, कोई उसकी जूती चुरा के ले गया था बेचारे की साहिल पर से। BEAR बियर के माने टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। आई कुड नॉट बियर योर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैं तुम्हारा बेजा तसल्लुत, कॉर्शन, धौंस, बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करने के लिए जो लफ्ज़ है BEAR बियर, बर्दाश्त करना, बियर बॉर्न। और BARE बेयर के मानी एम्प्टी, खाली। नेक्स्ट पेयर जो हम डिस्कस करेंगे BRIDLE ब्रिडल, लगाम, घोड़े की लगाम होती है। BRAKE ब्रेक, पुल द ब्रिडल ऑफ योर हॉर्स, अपने घोड़े की लगाम खींचो। ही इज जस्ट लाइक अ अनब्रिडल हॉर्स, वो बेलगाम घोड़े की मानिंद है, यानी किसी के काबू में नहीं आता। तो BRIDLE ब्रिडल के मानी ब्रेक के हैं। देखो ब्रेक भी 2 होते हैं, BREA के ब्रेक वक्फे के लिए, और BRAKE ब्रेक रोकने वाला। BRIDLE ब्रिडल के मानी ब्रेक के हैं, लगाम के। ही हैज़ बॉट अ न्यू ब्रिडल फॉर हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े के लिए नई लगाम खरीदी है। जब घोड़ा चलाते हैं तो लगाम खींचते हैं तो सर ऊपर होता है और घोड़ा रुक जाता है। BRIDL ब्रिडल, घोड़े की शहसवारी जिसने की हो, हॉर्स राइडिंग, उसे इस बात का अंदाज़ा होगा। BRIDL ब्राइडल, ब्राइडल के लफ्ज़ी माने वेडिंग के हैं, शादी का जोड़ा, शहाना जोड़ा। हर ब्राइडल रिंग वॉज ब्यूटीफुल, उसकी जो शादी की रिंग थी, जो उसकी निकाह की अंगूठी थी, वो बड़ी खूबसूरत थी भाई, माशाअल्लाह। नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बैड और बेड। BAD बैड, बुरा, वर्स। ही इज अ बैड बॉय, बहुत खराब लड़का है, नॉट अ गुड बॉय। BAD बेड के मानी एनफोर्स करना, मजबूर करना, प्रेशराइज करना। द टीचर बेड मी टू लीव द रूम, द टीचर बेड मी टू लीव द रूम, टीचर ने मुझे मजबूर किया। गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस रूम, ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज, निकल जाइए कमरे से बाहर, गेट आउट। तो BAD बेड, इन्फोर्स करना, प्रेशराइज करना, प्रेस करना। द टीचर बेड मी टू लीव द रूम, डिसिप्लिन बड़ी हैसियत रखता है। क्लास इन्वायरमेंट पीसफुल होना चाहिए ताकि लेक्चर को डिस्टिंक्ट तरीके से सुना जा सके, कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट किया जा सके। अब बच्चा शोर कर रहा है तो द टीचर बेड हिम टू लीव द रूम, टीचर ने उसे मजबूर किया कि कमरे से बाहर निकल जाओ। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया उसका ताल्लुक़ स्ट्रक्चर ग्रामर से था। सेक्शन बी, स्ट्रक्चर ग्रामर में
3 سوال گرامر کے دیے جاتے ہیں. ایک سوال کریکٹ دا ایرر یا اومیشن سے متعلق ہوتا ہے کہ جو رہ گیا ہے کوئی ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ورب یا اسٹرکچر ورڈ اس کو صحیح کر دو، ایرر دور کر دو. دوسرا سوال جو سیکشن بی میں ہوتا ہے وہ پیئر آف ہوموفونز سے متعلق ہوتا ہے. آپ کو 6 پیئر آف ہوموفونز دے دیے جاتے ہیں، کوئی سے 4 پیئر آف ہوموفونز، یعنی 4 پیئر کا مطلب ہے 8 سینٹنس، 3 پیئر کا مطلب ہے 6 سینٹنس آپ کو بنانے پڑتے ہیں. اور میننگ لکھنا زیادہ فروٹفل ہوتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ ہوموفونز کے اسپیلنگ اور میننگ کے ڈفرینس کو جانتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سینٹنس میں یوز کر سکتا ہے. تو اٹ وڈ بی رادر بیٹر، اور یہ آپ کے مارکس بڑھانے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ہوموفونز کے ساتھ اس کی میننگ دیجئے اور اس کے بعد سینٹنس ڈیزائن کریں. بے شک آپ کالم مت بنائیے، ہوموفون لکھیے، بریکٹ میں پیرنتھیسس میں اس کی میننگ لکھیے، کالن یعنی ڈبل ڈاٹ کے بعد سینٹنس بنا دیجئے، اگلی لائن میں سینٹنس بنا دیجئے. تو ایک پریزنٹیشن نظر آنی چاہیے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.